start with prayers. Let us chant prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kathanchan smrite yasmin duskaram sukaram bhavet Vismrite viparitam syat Shri Chaitanya namamitam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Sarva Upanishado Gao Dugdha Gopal Nandano Parthavats Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Deva Devaki Putra Eva Eko Mantra Tasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Nitai Gaurang ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Welcome all the devotees. So I'll start with discussion on the quiz. So I'm going to share the result of day before yesterday's quiz, that is on 12th. So here is the result of all of you. So let us take the questions first. So there were 10 questions. First question was, which analogy explains the appearance and disappearance of Lord Krishna in material world? So we discussed that Krishna does not take birth, neither takes birth nor dies. So Krishna appears and disappears. So what is that analogy? Analogy is of rising of the sun and setting of the sun. So sun rising, moving, and then disappearing from our sight. So option B will be correct one. So Krishna does not die, or Krishna does not take birth like us. It is our conditioning by which we are not able to see Krishna now. Krishna is there even today. Those whose eyes are anointed with love for Krishna, they can see Krishna even now. Those whose eyes are anointed with love, that means who has love for Krishna, they can see Krishna even today. Just like Prahlad Maharaj, when Hiranyakashipu asked, where is your God? So Prahlad Maharaj said, everywhere there is God. Is your God in this pillar? Yes, my God is in pillar. So pillar में मारता गधे से, और गधा जैसे ही वो पिलर को ब्रेक, पिलर में से नरसिम्हदेव भगवान, बोलो नरसिम्हदेव भगवान की जय. So Narasimhadev Bhagwan appears from the pillar. Now, atheist cannot understand this, how Lord is there in the pillar. But Prahlad Maharaj, because he was a devotee of Krishna, so he was seeing the Lord even in the pillar. So Lord is there. It is us. Because of our conditioning, we are not able to see. So demoniac class, they are not able to see the Lord. But devotee can see the Lord. So we have to become the devotee. So it is just like sun rising and setting. Now there is no sun, right? But still there is sun. One can say there is no sun. We can say there is no sun. But one person who joins from America in our class, he will say, Prabhu, sun is there. So to whom we should believe? To that person who is coming, who is joining our class from America, or to us who is from India? Both are equally valid. They both are speaking truth. That sun is there.
We are not able to see because of our conditioning. But Americans now, they can see the sun. So sun is always there in the sky. It is because of our conditioning of eyesight we cannot see. Similarly, Krishna is there today also. Now, at this moment, he is hearing, he is seeing that how many of you are attending the class attentively. How many of you are just making a show off. Attentively सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं. Krishna is watching and accordingly Krishna will reciprocate. जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, ना reciprocate करेंगे according to your surrender. कैसे हम सरेंडर कर रहे हैं उसी के हिसाब से कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं. सो कितना हम गोलमाल कर रहे हैं क्लास में भी, या क्लास नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या जेन्युइन रीजन है, वैलिड रीजन है, या जस्ट टू फॉर द हेक ऑफ कमिंग वी आर कमिंग, या गोलमाल कर रहे हैं. सो कृष्णा इज वाचिंग एवरीथिंग. सो वी शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस दैट कृष्णा इज देयर सीइंग. So when we surrender with good faith, good intention, with love, then Krishna will definitely reciprocate because Krishna is there. So wherever and whenever Lord incarnates, the fill in the blanks also incarnate in order to serve Lord in different capacities. Associates of devotee association, associate devotees. So option C will be correct. मैंने क्या एनोलॉजी दिया था, जैसे ट्रम्प जब इंडिया आया था, सो इंडिया में ट्रम्प जब आया, इवन दो इंडियन गवर्नमेंट मोदी हैज डन ऑल द अरेंजमेंट्स, स्टिल ट्रम्प हैड ब्रॉट हिज ओन सिक्योरिटी, हिज ओन अटेंडेंट्स, हिज ओन पीपल, his own kitchen setup, everything. He did not take anything from India. He did not eat anything. He had his own setup of kitchen. They will cook and they will offer to Trump. See, even materialistic person, ordinary person, President of America, when he comes to India, he brings all his entourage, his associates, everything, his place of living, everything. In the same way, when Krishna appears from the spiritual world, Krishna also comes along with all his entourage. Entourage means his paraphernalia, means his associates, his dham. Vrindavan dham also Krishna brings. So this Vrindavan dham is non-different from that Vrindavan dham in the spiritual world. So Lord comes along with his associates, devotee associates. 3 modes of material nature works under Krishna, option C. In which verse Krishna states that his birth is not ordinary but transcendental? 4.9. 4.9 we discussed very thoroughly that Krishna's birth and activities are transcendental. कल हमने समझा क्या है transcendental का मतलब. दिव्य, दिव्य हिंदी में दिव्य बोलते हैं, transcendental मतलब दिव्य. दिव्य मतलब क्या? Beyond 3 modes, मतलब 3 गुणों से परे. फिर Krishna asked Vasudeva to take him to Gokul and change him with Yogamaya. That is Durga. Yogamaya is Durga. Yamuna Kalindi is one of the wives, principal wives of Krishna. Which one? 4th, 5th, 6th. So पहली रुक्मिणी शादी हुई, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा सो इनफैक्ट चौथे से शादी हुई थी कालिंदी की. सो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कोई भी ऑप्शन अगर डाले हैं तो करेक्ट ही होगा. एनीवे, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना. ये श्लोक का क्या मतलब है? वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटी डज नॉट upon leaving the body takes his birth in this material world. So option A will be correct. According to Shastras, what is more important? Darshan of Lord in temple, hearing about Lord from general people, hearing about Lord from devotees coming in parampara, all things are equally important. No. Lord's glories. आज मैं एक आपको पास टाइम पढ़ के सुनाता हूँ. बहुत ही अच्छा पास टाइम है. It comes in Srimad Bhagavatam 10th canto. What happens when Krishna, when there was solar eclipse, when Krishna was there living in Dwarika, so that was the time when solar eclipse was there. Solar eclipse अब आज भी होता, लेकिन वो solar eclipse it was very very special because that kind of eclipse happens only in the end of kalpa. कल्प मतलब ब्रह्मा का जब दिन खत्म होने वाला होता है ना, तब सूरज पूरी तरीके से ढक जाता है और पूरा काला हो जाता, पूरा मींस डेंस डार्क. So that was the kind of solar eclipse that time.
So by calculation, astronomical calculation, all could understand that on the so and so date there will be solar eclipse. So all planned that we'll go to Kurukshetra, that same place where later battlefield of Kurukshetra happened, that Mahabharat battle happened. So this past times, this solar eclipse happened before Mahabharat battlefield. We are discussing Bhagavad Gita teachings. This Bhagavad Gita was spoken by Krishna in Mahabharat battlefield, Kurukshetra. But this Kurukshetra was very well known for performing sacrifices. So all the people of the world, they decided that we'll go to Kurukshetra and we'll do sacrifices, we'll take bath and we'll do yagya over there in Kurukshetra field. So because Kurukshetra is dharma, इसलिए पहला श्लोक क्या लिखा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र. So Kurukshetra is not an ordinary place, it is धर्म क्षेत्र. यहाँ पर धर्म की एक्टिविटीज सिंस टाइम इमेमोरियल होती जा रही है. इवन परशुराम जब उन्होंने 27 टाइम्स क्षत्रियों का विनाश किया था, बिकॉज क्षत्रियस वर नॉट रूलिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता, टीचिंग्स ऑफ कृष्णा, एज पर धर्मा. they were ruling and they were actually gratifying their senses. They were not ruling as per the instruction of Shastra. So Parasuram, Lord incarnates as Parasuram, and Lord killed all such demoniac Kshatriyas 27 times. How many times? 27 times. He beheaded, he finished earth from Kshatriyas. Then, in order to do atonement, anyway, Lord does not require to do any kind of atonement. Parashuram was Lord himself. He is incarnation of Lord. So, but he went to Kurukshetra to atone. He also performed sacrifice there. So, Kurukshetra place बहुत ही auspicious पहले से ही रहा, धर्म क्षेत्र है. So, जब कृष्णा और सारे द्वारिकावासी, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, सारे देवी देवता सब वहां पर आते हैं, सारे राजा महाराजा सब कुरुक्षेत्र में असेंबल होते हैं. तो जब वृंदावन के जो इनहैबिटेंट्स थे, उनको जब पता चला कि कृष्णा इज गोइंग टू कम इन द्वारिका, कुरुक्षेत्र, सो वृंदावन से कुरुक्षेत्र पास में है. So all the residents of Vrindavan also decided that we'll also go to Kurukshetra. Now here these inhabitants of Vrindavan, they don't want to go to Kurukshetra for performing dharma rituals. No, they are going to Kurukshetra to see their beloved Lord Krishna, because at the moment they heard that Krishna is going to come in Kurukshetra, so they immediately decided, Nanda Maharaj, Yashoda Maiya, Radha Rani, all the Gopa friends, all the gopis, they all very hastily they arrange all kinds of, they were making preparations. Krishna ये like करते थे, कृष्णा गुलाब जामुन अच्छा लगता, कृष्णा को संदेश अच्छा लगता था, कृष्णा को ये अच्छा लगता, कृष्णा को ये सारे गोपा गोपी, they are all cooking, preparing for Krishna. And वो बैलगाड़ी पे लाद के पूरा कृष्णा को खिलाने के लिए, कृष्णा को देखने के लिए वो कुरुक्षेत्र चले गए. तो वो लोग, उनका कुरुक्षेत्र जाने का अलग पर्पस था. बट एनीवे, वहां पर सब लोग इकट्ठा होते हैं. फिर जब गोपियां कृष्णा को देखती हैं, so they were mad. Because after when Krishna went from Vrindavan to Mathura, Krishna said, I will come back very soon after killing this Kansa. But Krishna never returned because demons were keep on attacking. So Krishna did not get time to go back to Vrindavan because Krishna had to kill the demons. Jarasandha ने 18 times attack किया. एक साल में एक बार attack करता था. So 18 years it took. So Krishna thought that it is good to be away from Vrindavan, otherwise inhabitants of Vrindavan will unnecessarily get disturbed by these demoniac people. They will attack in Vrindavan. So Krishna did not get chance to go to Vrindavan. So, but promise Krishna had done that I will come back soon. But Krishna is here now busy fighting with the demons. He is killing the demons because हम लोगों ने समझा 4th chapter के verse number 7 में कि कृष्णा का one of the principal reason for descendants is to destroy the demons. So पहला क्या था? To protect the devotees. So वृंदावन में कर दिया उन्होंने, कृष्णा ने devotees को protect वगैरह किया. फिर now Krishna has to kill the demons. So therefore Krishna was now busy. He was busily engaged in killing the demons. So therefore Krishna did not get time to go back to Vrindavan. Now after so many years, say more than 30-40 years, those residents, inhabitants of Vrindavan, they were thinking, anticipating, waiting for Krishna, their Lord, their beloved Lord, Krishna, who was Shyam Sundar, the Lord of their heart. All the inhabitants were mad for Krishna. They would
They would not do anything without seeing Krishna. They were so much attracted to Krishna. But Krishna went, never returned back. So now when they heard Krishna is coming to Kurukshetra, they all rushed to Kurukshetra. So then Krishna, all the gopis, they saw Krishna. They were so elated, so joyful. They were so jubilant. So वहां पर युधिष्ठिर महाराज भी आए थे, सारे सारे पांडवाज आए थे, भीष्म पितामह भी आए थे, सब आए थे. सो कृष्णा जो है वहां पर मिलते हैं किससे? द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर महाराज. सो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि कैसे हैं आप? कृष्णा पूछते, जैसे हम जनरली मिलते हैं तो हम पूछते कैसे हैं आप. सो कृष्णा ने भी युधिष्ठिर महाराज से पूछा कैसे हैं आप. So here, please attentively, I am going to read this pastime from Bhagavatam. It is 82nd chapter of 10th canto of Srimad Bhagavatam, wherein 83rd chapter, wherein it is written, there were many visitors who came to see Krishna, and among them were the Pandavas, headed by King Yudhishthir. After talking with the gopis and bestowing upon them the greatest benediction, Lord Krishna welcomed King Yudhishthir and other relatives who had come to see him. So he first of all inquired from them whether their situation was auspicious. Actually, there is no question of ill fortune for anyone who sees the lotus feet of Lord Krishna. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा है यहाँ पर? Actually, there is no question of ill fortune for anyone who sees the lotus feet of Lord Krishna. So therefore, having darshan of the Lord every day is very important. All your misfortune, ill fortune will be wiped out. So there is no question of ill fortune if you have had darshan of the Lord. Yet when Lord Krishna, as a matter of etiquette, inquired from King Yudhishthir about his welfare, the king became very happy. तो युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छा लगा कि कृष्णा मुझसे पूछ रहे हैं आप कैसे हैं. The king became very happy by such a reception and addressed the lotus the Lord thus. So भगवान को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान सुनना, चाहे तो लिख सकते हो आप. My dear Lord Krishna, great personalities and devotees in full Krishna consciousness always think of your lotus feet and remain fully satisfied by drinking the nectar of transcendental bliss. So, जो devotees हैं, they are always thinking of your lotus feet and therefore they are fully satisfied. कैसे? By drinking the nectar of transcendental bliss. They are always in bliss by thinking of your lotus feet. Just like gopis, Vrindavan के जो devotees. The nectar which they constantly drink, जो devotees भगवान के चरणों को याद करके जो nectar enjoy करते हैं, वो nectar, that nectar which they constantly drink sometimes comes out of their mouth also. So the devotees who are enjoying nectar, sometimes it comes from their mouth also. कैसे? Sometimes comes out of their mouths and is sprinkled on others. और दूसरों के ऊपर sprinkle करते हैं. As the कैसे sprinkle करते हैं? As the narration of your transcendental activities. So devotees who are always engaged in thinking of your lotus feet, ये युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को बोल रहे हैं कि जो आपके चरण कमलों को हमेशा ध्यान करते हैं, वो they are enjoying nectar in their life. और कभी कभी उनके मुख से नेक्टर निकलता है और वो शावर करता है लोगों के ऊपर. कैसे? When they glorify your activities to these people. तो क्या होता है? ऐसे लोग जो सुनते हैं तो उनके लाइफ में क्या होता है? This nectar coming from the mouth of a devotee is so powerful that if one is fortunate enough to have the opportunity to drink, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जब डिवोटीज वो नेक्टर शावर करते हैं तो कुछ लोग जो फॉर्चुनेट लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. क्या मिलती है? कि वो कैसे नेक्टर वो शावर करते हैं? बाय डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड. जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग द इंस्ट्रक्शन एंड पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा. So these are the nectars. But those who are very fortunate, they only get a chance to relish this nectar. So यहाँ क्या लिखा है? This nectar coming from the mouth of a devotee is so powerful
that if one is fortunate enough to have the opportunity to drink it, he is immediately freed from the continuous journey of birth and death. क्या होता है, कोई अगर बहुत फॉर्चुनेट है, उसके साथ वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ड्रिंक करने की, क्या ड्रिंक करने की, द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा. सो व्हाट हैपेंस, he is immediately freed from the continuous journey of birth and death. Our material existence is caused by our forgetfulness of your personality. युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, why we are suffering in this material world? Because we have forgotten Krishna. But fortunately, the darkness of forgetfulness is immediately dissipated if one is privileged to hear about your glories. Therefore, my dear Lord, where is the possibility of ill fortune for one who is constantly engaged in hearing your glorious activities? So, जो भगवान की कथाओं को सुन रहा है, भगवान के इंस्ट्रक्शन को सुन रहा है, उसके जीवन में इल फॉर्चून कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल. सो युधिष्ठिर महाराज ये बोल रहे हैं. Just imagine, just see, that's what we are doing here. We are hearing about the activities of Krishna. So there can be no ill fortune. So much, benefit we are receiving here from this activity, even though it may look like, अरे ठीक है मुझे आता है. नहीं, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, just go on hearing the activities and instructions of the Lord. You will develop all auspiciousness. There will be no ill fortune. भले ही और repetitive instruction हो. प्रभुपाद बोलते हैं, sometimes repeatable instructions are very important because it becomes easy for us to understand the subject matter very thoroughly. तो अगर हम रिपीट नहीं करें तो हम भूल जाते हैं. सो इसलिए रिपीटिशन इज वेरी नाइस. जब बार बार कोई चीजें रिपीट की जाती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और फिर हम उसको बहुत ही अच्छे से एक्ट करते हैं. अदरवाइज हम भूल जाते हैं, फिर हम इग्नोरेंस में आ जाते हैं और हम फिर कुछ भी करते हैं. Anyway, so hearing about the Lord is very, very important. So we should focus more on hearing than seeing. Seeing is important, but more than seeing is hearing. क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा भगवान कौन है. तो हम भगवान को देख भी लेंगे तो हम कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. करेक्ट. So therefore, more than seeing is hearing important. Next, what is significance of word sajam in verse 4.7? It means that Lord appears randomly. It means that Lord appears at fixed interval of time. That Lord manifests himself as he is. It means that Lord manifests with the material body. So option C will be correct. Sajami means Lord. It means Lord manifests himself as he is. So option C will be correct. Lord Rama appears once in 4,000 Mahayugas. And Krishna appears once in, मतलब 4 महायुग में लॉर्ड रामा अपीयर होते हैं एंड 100 महायुग में कृष्णा अपीयर होते हैं. 1000 महायुग, 1000 महायुग में जब 1000 साइकिल घूम जाता है तो कृष्णा अपीयर होते हैं और 4 बार जब साइकिल घूमता है तो लॉर्ड रामा अपीयर. एवरी 4 साइकिल्स लॉर्ड रामा अपीयर्स, एवरी 1000 साइकिल्स कृष्णा अपीयर्स. So that's how option C will be correct. So Krishna's appearance is very, very rare. So this is the quiz of 12th June. Let us see the result. So result is Tarun 6, Nikhil 6, Ankur 10. Very nice. UCS 5938, Vikas 9, AK 7, Krishna 10, Piyush 8, Sekhawat 9, Radha 6, Barnwal 8, Ratindra 9, Sunidhi 8, Suman 7, Parth 8, RKT 8, Shreya Pandey 9. So only one person got 10, that is Krishna. So big round of applause for Krishna, and Ankur also got 10. So सबको 10 नंबर लाना है भाई. कम क्यों आता है? सब लोग अच्छे से अटेंड करो क्लास. Everybody has to get 10 out of 10.
So these marks will be added in your final exam. You should be aware. So these numbers will be added in your final exam also. So the aggregate result will be displayed. So this is the result of 12th June. So now let us take quickly the result of 13th, that means yesterday's. So I am going to share the result of yesterday's quiz. Let us quickly display the result. So कल का जो है क्वेश्चन, हाउ इज द योगीज आर impersonally attain liberation? They go to Vaikuntha planets. Impersonalist yogis or impersonal, they go to Brahmaloka. They never attain liberation. They merge into impersonal Brahma Jyoti. So option B will be correct. Impersonal liberation क्या है? वो merge हो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में. Who is the prime reason for, what is the prime reason for advent of Lord? To reestablish principles of religion, to appease his unalloyed devotees. To appease his unalloyed devotees. So option C will be correct. That is the prime reason. वैसे तो तीनों करेक्ट है, लेकिन जो प्राइम रीजन है भगवान का धरती पर अवतार लेने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, अपने भक्तों को सर्व करने के लिए, टू अपीज देम, टू प्रोटेक्ट देम. Which analogy best describes how the three modes of material nature run the whole world? So कल हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. RGB colors making a whole movie. जो थिएटर में हम लोग मूवी देखने जाते हैं, so वहां पर मूवी क्या है? It is not nothing but the mixture of three colors. That's all. That there is nothing, no hero, no heroine, nothing of a sort. It is just three colors that is making the whole world on the screen. In the same way, this material world is actually nothing but the intermixture of combination of three modes. Three modes are making everything to do in this material world. So option B will be correct. Who was Putana in previous birth? Wife, the wife नहीं होगा, ये sister of Bali Maharaj. ये ऑप्शन सी होगा, कर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, सिस्टर ऑफ बली महाराज. हाउ डज हरे कृष्ण महामंत्र raises us to Satchidanand platform? By giving us mystic power, by destroying ignorance, knowledge that we are spirit soul, not the body. So option B and C, destroying our ignorance and giving us the knowledge that we are spirit soul. So जब चैंटिंग करते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज अवेकन होता है और जो इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय होता है बाई रेगुलर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण. मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा. कल इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी वर्स है. सो इसका क्या मतलब है? कृष्णा इज लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. कृष्णा प्रोवाइड्स ऑल नेसेसिटीज टू दिस डिवोटी. डिवोटीज फॉलो द पाथ ऑफ कृष्णा. एवरीवन फॉलोज कृष्णा's path. So option D will be correct. Means everyone is following Krishna's path. What does Sudama took for Lord Krishna as offering? Offering 3 morsels of chipped rice. So chipped rice लेके गए थे, 3 morsels, 3 मुट्ठी chipped rice ले गए थे. Why did Sudama got so much opulence? Because he asked Krishna to give him nahi. Because goddess of fortune became obliged to him. Yes. Because demigod were no. Because he no. So option B will be correct. Because when he pleased Krishna, so Lakshmi Devi became obliged. So similarly, when we please Krishna by our offering, when we do seva, when we do chanting, so Lakshmi becomes very pleased. Radharani becomes very pleased when we chant Krishna's name. So when we chant Krishna, Radharani will become very pleased. So Radharani will bless us. So correct match. Brahmanas, thinkers, Kshatriyas, leaders, Vaisyas, profit-minded, Sudra, worker. So पहला ऑप्शन करेक्ट होगा. So Brahmanas are thinkers, Kshatriyas are leaders, Vaishyas are profit-minded. That means they do business. Sudras, workers. Option, इस पे हम लोगों ने कल बहुत ही इंटेंस डिस्कशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस किया. अदरवाइज बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग अपने कल्चर के बारे में या वैदिक सिस्टम जो था, वर्णाश्रम सिस्टम था, उसको हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं और हम जो बाहर के लोग कुछ भी बोलते हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो ब्राह्मणास आर इन गुडनेस, क्षत्रियाज आर इन पैशन, वैश्याज आर इन पैशन एंड इग्नोरेंस, शूद्राज आर इन इग्नोरेंस. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. सो ब्राह्मण हमेशा गुडनेस में रहता है, क्षत्रिय पैशन में रहता है, वैश्य जो है वो पैशन एंड इग्नोरेंस मिक्सचर में, और शूद्र इग्नोरेंस में रहता है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. सो 14 students they attended the quiz. So let us see who performed well.
So Krishna 9, Madhav 6, AK 5, Ankur 9, Vikas 9, Shreya 8, Shreya 8, Shekhawat 9, Sunidhi 6, Payal 6, Ratindra 8, RKT 7, Piyush 7, Parth 9, Harsh 5. So nobody got 10. Anyway, so आप लोग अच्छे सुनना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे. अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत इजीली 10 out of 10 ला सकते. Anyway, so now we'll stop this and we'll resume our fourth chapter. Very quickly, we are going to discuss our fourth chapter, and today I'll end the fourth chapter, that is transcendental knowledge. So we are discussing very important subject matter, and I hope all of you are enjoying, because these topics which are there in fourth chapter, they are very, very important. Krishna has revealed the secret, so therefore it is very important for us to understand very thoroughly. So कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि ब्राह्मणाज आर थिंकर्स, क्षत्रियाज आर लीडर्स, वैश्याज प्रॉफिट माइंडेड, शूद्राज आर वर्कर्स, एंड देन ब्राह्मणाज आर इन गुडनेस, क्षत्रिय, ये सब हम लोगों ने कर लिया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सो जब कृष्णा एक्टिविटीज करते हैं तो क्या हमारी तरह वो भी इंटैंगल हो जाते हैं कर्म में? जैसे कि हमने बताया था आपको, जैन फिलॉसफी बोलती है कि कृष्णा इज इन द हेल. दे से दैट कृष्णा ने महाभारत की लड़ाई में करोड़ों लोगों को मरवाया, ये कृष्णा के कारण हुआ, इसलिए कृष्णा नरक में है. सो क्या सही बात है? चलो कृष्णा से ही सुनते हैं, व्हाट डज कृष्णा से. सो कृष्णा ने 4.14 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिवील किया है. कृष्णा बोलते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर न सबध्यते. There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reaction of work. So कृष्णा ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया यहाँ पर कि there is no work that affects me, न माम कर्माणि लिम्पन्ति. कोई भी एक्टिविटी कृष्णा को बांध नहीं सकती. सो जो ये लोग बोलते हैं कृष्णा इज ऑल्सो बाउंड, कृष्णा गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज, कृष्णा रिएक्ट. कभी कभी आप लोग सुने होंगे एपिसोड्स में भी, धारावाहिक में, रामायण में, और ये जो लोग बनाते हैं आजकल तो बहुत ही गंदा बना रहे हैं, कृष्णा सीरियल, राम भगवान के ऊपर सीरियल, ये सब तो बहुत ही अनऑथराइज, इसमें गलत गलत बहुत दिखाते हैं. आप लोग मत देखा करो ये सब. जो वेब सीरीज, ये एपिसोड्स वगैरह आते हैं ना, ये भगवान के ऊपर, लॉर्ड शिवा के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, और ये सारी चीजें ये बहुत ही गलत दिखा रहे हैं. इसमें 10% भी सत्य नहीं है, पूरा अनऑथराइज्ड है. जस्ट इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बहुत इंटरटेनमेंट ओरिएंटेड है, ट्रुथ ओरिएंटेड नहीं है, बहुत गलत दिखा रहे हैं, इसको मत देखना. तो इन लोग क्या करते हैं कि जैसे भगवान खुद डायलॉग बोल रहे हैं, उसमें जो राम का रोल प्ले कर रहा है या कृष्ण का रोल प्ले कर रहा है, वो खुद बोल रहा है कि जो है कर्म का विधि का विधान ऐसा है कि हमें भी कर्म को भोगना पड़ता है, चाहे हम राम हो या कृष्ण हो. तो ऐसे डायलॉग्स वो डिलीवरी कर रहा है, तो जब हम सुनते हैं तो, क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट है बहुत ज्यादा हमारे माइंड पे देता है. कोई शास्त्र तो पढ़ता नहीं, कोई भगवद गीता तो पढ़ता नहीं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. आज हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पीपल डोंट रीड स्क्रिप्चर्स, दे गेट नॉलेज बाय वाचिंग वेब एपिसोड्स एंड सीरियल्स, या किसी का सुना सुनाया पढ़ सुन के बोलने लग जाते हैं, टीवी सीरियल में देख के बोलते हैं, कभी पढ़ते नहीं है. आप में से भी कितने लोग पढ़ते हैं, आप देख लो, सोचो कितनी बार मैंने बोला भगवद गीता पढ़ो, बट हाउ मेनी ऑफ यू रीड? सो जब रीड करेंगे तभी हमें ये थॉरो अंडरस्टैंडिंग आएगी, नहीं तो हम भी ऐसे कंफ्यूज रहेंगे. सो प्लीज रीड वेरी नाइसली. सो यहाँ कृष्णा ने बोला है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, लेकिन वो एपिसोड में क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर अपने हिसाब से कुछ भी बोलवाता है ना, वो तो रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं, जो रोल प्ले कर रहा है भगवान का, कि देखो जी भगवान भी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, वो भी अपने कर्मों का जो है फल पा रहे हैं. ऐसा नहीं है भैया. यहाँ कृष्णा ने बोला देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स कृष्णा. ऐसा कोई वर्क नहीं जो कृष्णा को रिएक्ट करता हो, नहीं. सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट. सो कभी भी आप ऐसे स्टेटमेंट्स अगर सुनो तो तुरंत करेक्ट करो, जो भी सुन रहा है उसको भी बताओ और उसको बोलो कि गलत है, और अपने आप को कन्विंस करो कि यस 4.14 में कृष्णा ने बोला है नहीं, कृष्णा इज नेवर अफेक्टेड. इनफैक्ट कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो ये जान जाता है कि कृष्णा कभी बाउंड नहीं होते, अफेक्ट नहीं होते, वो भी कभी इंटैंगल नहीं होता. जस्ट सी द पोटेंसी. मतलब हम अगर जान जाएं
कि कृष्णा कभी भी किसी भी एक्टिविटी से इंटैंगल नहीं होते, तो हम भी किसी भी एक्टिविटी से इंटैंगल नहीं होंगे। जस्ट सी द पावर। मतलब हम केवल ये जान जाएं कि कृष्णा को कोई एक्टिविटी बांध नहीं सकती, बस ये अंडरस्टैंडिंग, ये कन्विक्शन अगर हमारे अंदर डेवलप हो गया, तो हमें भी कोई एक्टिविटी नहीं बांध सकती। फॉरगेट अबाउट कृष्णा गेटिंग बाउंड बाई एक्टिविटीज। सो कृष्णा की क्या बात है, जब हम ही नहीं बंधेंगे तो कृष्णा को कैसे कोई बांध सकता है एक्टिविटी। करेक्ट। यहाँ कृष्णा बहुत ही साक्षात डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। So therefore, we should have strong faith that Krishna is never bound by any of the activities. चाहे कृष्णा माखन चुरा रहे हैं, कृष्णा महाभारत लड़ाई करा रहे हैं, कृष्णा रास लीला कर रहे हैं, कृष्णा इज लॉर्ड। एक एनालॉजी आता है, जैसे जज है, जज जब किसी को, जब व्हेन ही प्रोसिक्यूट्स, जो प्रोसिक्यूशन हैपेंस, सो किसी कोई एक व्यक्ति है, ही इज प्रोसिक्यूटेड टू हैंग, गेट हैंग्ड टिल डेथ। सो अब वो जज ने ये सजा सुना दी, he will be hanged till death. So क्या जज भी इससे एफ्लिक्ट हो गया? क्या अभी जज भी इससे बधा इस एक्टिविटी से? उसको रिएक्शन आएगा? नहीं। He judge is independent. He is not bound by any of the action which he is doing. He is like Lord. मतलब एक एनालॉजी है, एग्जांपल है। जज भी बाउंड है, जज भी कभी कभी गलत जजमेंट देता है ना, सो उसके भी लाइफ में बहुत ही केओस हो जाते हैं, हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है उस, खत्म, बहुत मतलब बच्चे पागल हो जाते हैं, खुद उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, कितने मेडिकेशंस के थ्रू जाना पड़ता है उसको। सो वो भी लॉर्ड, लॉर्ड तो भगवान है, जज अल्टीमेट जज इज कृष्णा। बट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जज किसी कैदी को सजा सुनाता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रिजनर्स मिसडूइंग, नॉट बिकॉज ऑफ दैट एक्ट जज ने सजा सुना दी तो अब उसका रिएक्शन जज को भी आएगा, नहीं। जज इज फ्री, उसी तरीके से भगवान भी फ्री है। Another example comes of rain and trees. तो जैसे रेन, बारिश होती है, so rain is not the responsible for the trees to grow, but still without rain trees will not grow. Correct? जैसे हम लोग we are doing plantation, so plantation उसमें पानी डालते हैं, बारिश होती है तो grow होता है, but actually this is not because of rain, it is because you have planted the seed. Seed is responsible for the plant to grow. लेकिन but still rain is important. So without rain trees will not grow. Similarly, without the Lord you cannot perform any activity, but still Lord is not responsible, we are the responsible. So rain और tree का analogy बहुत अच्छा है. It is not because of the rain plants are growing, plants are growing because of the seed. आपने मैंगो सीड लगाया तो मैंगो ग्रो होगा, उसमें नीम नहीं निकलेगा, नीम का पेड़ नहीं निकलेगा. So the growing is happening because of the seed. So seed is responsible, but still rain is important. Without rain tree will not grow, but rain is not responsible. So दोनों है. Rain is because of, without rain it will not grow, but still rain is not the main cause. उसी तरीके से भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल. सो अनदर एग्जांपल कम्स ऑफ मिल्क एंड कर्ड. सो हम लोग जो है अभी एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं, वी आर सफरिंग द रिएक्शन. व्हाई वी आर सफरिंग? बिकॉज ऑफ वी हैव परफॉर्म्ड सिंफुल एक्टिविटीज, सो देयरफॉर वी सफर. सो व्हाट इज द होप फॉर अस? सो दिस एनालॉजी कम्स मिल्क एंड कर्ड. सो जिस तरीके से कभी कभी हम, व्हेन वी overly indulge in taking milk, then our bowels get upset. Our bowels get upset. हमारा पेट खराब हो जाता है ज्यादा दूध पीने से. लेकिन डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा दही खाओ, सही हो जाएगा. So dahi is nothing but, curd is nothing but transformation of milk only. Now if patient thinks, अरे दही भी तो दूध ही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क ही है, but why this doctor is suggesting that you eat curds? हो सकता है मेरा पेट और खराब हो जाए. But no, because doctor knows well, he knows better, so he is asking you to eat curds. So if you take curds, then your bowels will be again set. It is now upset. You eat by drinking milk, it is upset. When you eat curd, your bowl will be set again. So दोनों मिल्क ही है, कर्ड भी डेरिवेटिव है मिल्क का, बट स्टिल कर्ड विल क्योर यू. सो उसी तरीके से एक एक्टिविटी जो आपको बाउंड कर रही है,
रिएक्शन आ रहा है उसका, वही एक्टिविटी को अगर आप भगवान से जोड़ देंगे सो रिएक्शन नहीं देगी आपको। एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर कृष्णा विल नॉट गिव यू एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन। कोई भी एक्टिविटी आप, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, यू डू एनीथिंग फॉर कृष्णा, so one, let us take two scenario. One scenario, you are going to the market to purchase something for the Lord. Another scenario, another person is going to market but to purchase something for himself, so he will be bound, you will not be bound, even though you are also doing activities. But because you have transformed your activity, like milk is transformed into curd, तो भगवान को जैसे हम ऐड कर देते हैं, so हमारी एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कोई रिएक्शन नहीं देती। सो ये मिल्क और कर्ड की एनालॉजी बहुत अच्छा है ये समझने के लिए कि कैसे हमारी नॉर्मल एक्टिविटी हमें बाध रही है, लेकिन उसी एक्टिविटी अगर हम कृष्णा को ऐड कर दें तो हमें मुक्त फ्री कर देती है। जैसे दूध हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन वही दूध जब दही बन जाता है सो हमें प्रॉब्लम को से सॉल्व कर देता है। वही दूध है, लेकिन जस्ट उसको तो आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो दूध जैसे ही बना वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आपका पेट सही हो गया। सो दिस इज वेरी नाइस एनालॉजी। तो उसके बाद 4th चैप्टर में गोइंग फॉरवर्ड सैक्रिफाइसेस के बारे में कृष्णा बताते हैं। सो व्हाट इज द कॉमन एम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस? कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग अबाउट सो मेनी टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, 4th चैप्टर में बताते हैं। सो द मेन goal, target, why we do sacrifices to control the senses. Lord is saying that in 4.30 that why do we perform sacrifices? To control the senses. Now why to control the senses, that is very important to understand. क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे माइंड को तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, और सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो मटेरियल एग्जिस्टेंस हमारा कंटिन्यू रहेगा, और सेंस कंट्रोल करेंगे सो हम स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में चले जाएंगे, दैट मींस वी विल गो बैक टू कृष्णा। सो देयरफॉर सेंस कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी डोंट कंट्रोल सेंसेस, then we gratify senses, we'll continue suffer. Why do we suffer? Because of not having sense control. This is the root cause, यहाँ कृष्णा बता रहे हैं। So without sacrifice, so therefore we do sacrifice से मन mind control होता है। So what is sacrifice recommended for Kali Yuga? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम लोग जप करते हैं तो ये यज्ञ है। सैक्रिफाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? यज्ञ, संस्कृत में यज्ञ बोलते हैं। सो व्हेन वी डू चैंटिंग हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ, आवर माइंड सेंसेस आर कंट्रोल्ड, सो आवर सेंसेस आर कंट्रोल्ड, then we can go in the spiritual world. See here, if senses are controlled, it will lead you to spiritual existence, and if senses are not controlled, then you will continue your material existence. So if you don't perform sacrifice, अगर आप chanting नहीं करेंगे तो क्या होगा? No happiness in life. 4.31 में कृष्णा बोल रहे हैं, नायम लोको अस्ति ना परो न सुखम संशयात्मना। सो न तो इस लाइफ में खुशी रहेगी, ना तो नेक्स्ट में। नायम सुखो अस्ति ना परो। If you don't perform sacrifice, so you will neither happy here in this world nor in the next. This is Krishna's instruction. So ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one's dragging on in material existence. The human form of life is the only loophole by which one may get out of this entanglement. This is very important lines written by Srila Prabhupada in the purport of 4.31 verse. Prabhupada क्या बोल रहे हैं? This is because of ignorance only we are suffering. We are ignorance कारण हम sin करते हैं, और sin के कारण हम suffer करते हैं। Why we are suffering? Because of sin. And why do we do sin? Because of ignorance. और ये ह्यूमन लाइफ है, एकमात्र ये अपॉर्चुनिटी जहां से हम ये sin को बंद करके knowledge develop करके, when we are in knowledge we will not do sin, then we get out of this entanglement. So there in Padma Puran there is nice verse which is explaining about different species of life. जैसे हम लोग सुनते हैं ना 84 लाख योनियां होती हैं, तो ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पद्म पुराण में आता है और एग्जैक्ट काउंटिंग दिया हुआ है
जैसे यहाँ श्लोक आप पढ़ेंगे, इसमें क्या है, जलजा 9 लक्षाणी, मतलब जल में 9 लाख, 9 मीन्स 9 lakhs जो है स्पीसीज हैं। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर मीन्स पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं ये लक्ष विंशति, विंशति मतलब 20, 20 lakhs स्पीसीज है किसके, पेड़ पौधे के। और जो जल में रहने वाले जो स्पीसीज है कितने हैं, 9 लाख। कृमयो रुद्र संख्या क्या, कितने रुद्र हैं, 11। तो 11 लाख कृमयो मीन्स इंसेक्ट्स, देयर इंसेक्ट्स 11 lakhs varieties of insects। पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख पक्षी पाए जाते हैं। देयर 10 lakh species of पक्षी मीन्स बर्ड्स। 63 लक्षाणी पशवः, जो पशु हैं, जो बीस्ट हैं, जानवर, वो 30 लाख वेराइटीज के होते हैं। और लास्ट में क्या आता है, चतुर्लक्षाणी मानुषः, जो 4 लाख वेराइटीज हैं, वेराइटीज मीन स्पीसीज मनुष्यों के। सो इन ह्यूमन बीइंग आल्सो देयर आर 4 लाख स्पीसीज, जस्ट सी। सो हमें तो सब ह्यूमन ही लगते हैं, नहीं, ह्यूमन में भी 4 लाख वेराइटी है, 4 लाख वेराइटी। सो आप सबको काउंट करें कितना हो जाएगा, 84 लाख। सो ये जल में रहने वाले हैं, जलजा, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ग्रेट व्हाइट शार्क, जेलीफिश। So these are all different species who resides in the water. Starfish, sea urchin, shrimp, sea snake. Just see, so many crab. Then sthavara means पेड़ पौधे, 12 lakhs. Sorry, 20 lakhs species of trees. Then insects, 11 lakhs insects. Just see on your screen. Pakshinam, birds, 10 lakhs. 30 lakhs animals, just see, so many varieties of animals. 4 lakh varieties of human being, you can see. In India also there are so many varieties, South India, North India, Northeast, and China, Russia, Australia, America, so many varieties. So there are 4 lakhs varieties of human being. And ये बताया जाता है शास्त्र में, इसी श्लोक के आगे वाले श्लोक में आता है, इन दिस जो ये 4 लाख स्पीसीज है ये ह्यूमन बी का, ये बहुत ही रेयर है। सो थ्रू ग्रेजुअल इवोल्यूशन फाइनली यू रीच टू दिस ह्यूमन फॉर्म, मींस 84 लाख स्पीसीज को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल रीच टू ह्यूमन प्लेटफॉर्म। इन ह्यूमन आल्सो देयर आर 4 lakhs। सो ह्यूमन का कैसे डिवीजन है, those who are uncultured, uncivilized, cannibals, those who are exactly like animals, so they have about lakhs of species. So one category हो, दूसरा category क्या है, those who are cultured, those who follow some rules, values, so they are advanced। और उसमें भी जो cultured हैं उसमें भी 2 डिवीजन है, एक जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, एक स्क्रिप्चर्स को नहीं फॉलो करते, एथिस्ट है, they may be cultured but they are atheistic, so they are lower। Those who are following scriptures, they are advanced। In the scripture also, in those who are following scriptures, उसमें भी divisions हैं। Some follow scriptures for sense gratification। जैसे scriptures बताया गया, ये यज्ञ करो, आपको धन संपदा बढ़ेगी, आपके जीवन में धन संपत्ति आएगी, आप जो है मटीरियल ऑपुलेंस पाएंगे। सो मटीरियल ऑपुलेंस के लिए वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो भी लोअर कैटेगरी में आते हैं। सो दूसरी जो कैटेगरी जो स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं, दे फॉलो स्क्रिप्चर्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर सफरिंग, हु वी आर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ऑल दीज इंक्वायरीज दे डू। सो दे आर सुपीरियर। इसमें भी अब कैटेगरीज हैं, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हम जो हैं आत्मा है और पर्पस ऑफ द आत्मा इज टू निर्वाण, निर्वाण मीन्स गेट मर्ज इनटू ब्रह्मन, तो ये भी इंफीरियर है, ये भी लोअर है। इससे ऊपर क्या है, those who understand that I am Atma, so purpose of Atma, us, Atma means us, we living, our real identity is that we are Atma, so our purpose is that we should serve the Lord, because Atma is part and parcel of Krishna, so we should serve Krishna, so they are the highest among all the species। So in Padma Puran it says that those who have developed this consciousness, they are topmost among all the 84 lakh species। सो हम लोग टॉप क्लास के स्पीसीज है जो कि ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, वी हैव टू चैंट कृष्णाज नेम एंड वी हैव टू गो बैक टू कृष्णा। सो 84 लाख स्पीसीज में ह्यूमन बीइंग्स आर टॉप। ह्यूमन बीइंग में भी जो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है
कि serving Krishna is the purpose of life, they are the topmost. So we are on the topmost platform. So therefore, we should realize this and feel feel very great that yes, we are very advanced. So we should not compare with other humans. अरे वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? नहीं, वो तो जैसे पक्षियों में भी एक कौवा होता है और एक हंस होता है. There is one category, that is category of swan. One category of bird is crows. So both are birds only. But have you ever seen swans are imitating or following crows? Because just because crows are eating filth, they are living in filth, they are eating garbage, they are living in garbage. So does that mean swans means हंस भी वहीं जाके वो उसमें it will dabble? No. Swans will take enjoyment in the crystal clear water, in the lotus stem. They will enjoy in the lotus crystal clear water, sporting, enjoying there. They will not, swans are not going to, dabble in the filth like crows. Similarly, both are birds only. एक कौवा है, एक हंस है. So हंस कभी कौवे को इमिटेट नहीं करता. उसी तरीके से इंसानों में भी एक कैटेगरी है जो those who are like crows and one category like swans. So those who are following Krishna consciousness, they are like hans. और जो Krishna consciousness की पराकाष्ठा पे हैं, those who are on the topmost platform, they are called Paramhans. इसलिए प्रभुपाद को क्या बोलते हैं? Paramhans परिवराज का आचार्य. So Prabhupada is Paramhans. But at least devotees, those who are chanting Hare Krishna, they are like Hans. But now devotees should not get influenced by these crows. Who are crows? Those who are dabbling with filth, means sense gratification. Sense gratification इंद्रिय तृप्ति कैसे है? वो जैसे कौवा जो है वो गार्बेज खा रहा है, वैसे ही जो इंद्रिय तृप्ति में ही आनंद ले रहा वो एक्चुअली में गार्बेज खा रहा है, वो गंदगी में है, वो गंदगी जीवन जी रहा है. तो swans, those who are devotees, they should not get influenced or affected. अरे यार मेरे फ्रेंड्स तो देखो वो एंजॉय कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, मैं यहाँ भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहा हूँ. नहीं, आपको समझना है कि ह्यूमन बीइंग में भी 4 लाख स्पीसीज है और उसमें भी कैटेगरी एक क्रोज के जैसे एक स्वान के जैसे. मैं स्वान हूँ, वो क्रो है, उसको क्यों मैं फॉलो करूं? सो नॉट नेसेसरी दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग सो आई शुड फॉलो हिम. नो, ही मे बी अ क्रो, you are swan. So we should be very alert. No, even though in your college, in your circle, in your society, there may be friends, but if they are not Krishna consciousness, they are crows. So you should make distance. You should not mingle with them. अरे अरे मेरा फ्रेंड, अरे फ्रेंड नहीं है, वो क्रो है. क्रो का डेफिनेशन क्या है? Those who dabble, those who indulge into filth, means इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका जीवन का लक्ष्य ही इंद्रिय तृप्ति करना. उसको पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्रो है. और जो हंस है उसको पता है कि purpose of life is to serve Krishna. So therefore we should never get affected by these crows like people. Very important. So what is the purpose of sacrifices? Attain complete knowledge, release from material miseries, loving transcendental service to the Lord. So ये purpose है sacrifice. जब हम sacrifice करते हैं तो हमें knowledge develop होता है. So कलयुग का क्या sacrifice है? चैंटिंग, संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड, जब नॉलेज डेवलप होगा तभी हम मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल मिजरी से फ्री होंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे. व्हाट इज द वे ऑफ नोइंग द ट्रूथ? कृष्णा बताते हैं 4.34 में, अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. वर्स नंबर 434 में कृष्णा क्या बोलते हैं? When we approach a bona fide spiritual master, then only we can know the truth, knowledge. So जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझा, knowledge, ignorance के कारण ही हम लोग sin करते हैं और sin के कारण हम लोग सफर कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में. So ignorance को अगर हमें खत्म करना है तो knowledge लेना पड़ेगा. So how to attain knowledge? What is the way to know the truth? Knowledge 4.34 में बोल रहे हैं कृष्णा, by approaching a spiritual master. So it is very important to have a spiritual master, bona fide spiritual master. कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पर, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना. So just like we have now, we are all blessed to have Srila Prabhupada as our spiritual master.
सो कृष्णा बोल रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाओ, नॉलेज लो। सो हमें स्पिरिचुअल मास्टर मिल गए हैं, प्रभुपाद। नाउ वी शुड रिसीव नॉलेज फ्रॉम हिम। सो प्रभुपाद बोलते हैं जेन्युइन गुरु इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ही स्पीक्स अबाउट गॉड एंड नथिंग एल्स। सो जो स्पिरिचुअल मास्टर है उसका क्या क्वालिफिकेशन है? कृष्णा ने बोला स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाओ। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? ही इज जेन्युइन। जेन्युइन गुरु कौन है? जो कि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है और भगवान के बारे में ही बोलता और कुछ नहीं बोलता। और फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल मास्टर इज वन हु इज 100% कृष्णा कॉन्शियस। मतलब प्योर डिवोटी है वो, उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल मटेरियलिस्टिक नहीं है। जैसे आप देखो प्रभुपाद, प्रभुपाद इतने प्योर थे कि उन्होंने हिप्पीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो शिखा लगा दी, सैफरॉन रोब पहना दिया सारे फॉरेनर्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई विदेशी अमेरिकन वो हमारा कल्चर फॉलो कर रहा है। लड़के लड़कियां दोनों देखो चारों तरफ प्रभुपाद के कैसे बैठे हैं, सर्वेंट के जैसे। अदरवाइज दिस फॉरेनर्स आर दे आर वेरी पब्ड अप। these fellows you cannot bring under control. ये ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स they put so much of chaos and problem in India. They subjugated India, लेकिन प्रभुपाद subjugated them. Just see, by the power of this transcendental knowledge. तो वही ब्रिटिशर्स, वही विदेशी इंडिया में आके रूल किए। जैसे बैल होता है ना, बैल की नाक में वो नाथ देते हैं रस्सी, तो बैल कंट्रोल में आ जाता है। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियंस के नाक में वो रस्सी डाल दिए थे। मतलब दे हैड कंप्लीटली कैप्चर्ड इंडियंस। इंडिया का हालत खराब कर दिया था। लेकिन वही एक इसी इंडियन में से एक इंडियन जो कि विदेश में जाके वो फॉरेनर्स को देखो क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। विदेशी आए थे इंडिया में अपना कल्चर देने के लिए, लेकिन हमारा ही इंडिया का एक व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद जी वो विदेशियों को अपना कल्चर दे दिए। तो कौन महान है? ये इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर जिनके लिए हम लोग देश की आजादी हमें दे दिए, उनके लिए हम जश्न मनाते हैं, वो महान है कि श्रीला प्रभुपाद महान? ये बता। जो कि मर गए, विदेशियों को भगा नहीं पाए। और यहाँ पर प्रभुपाद ने विदेशियों को अपना कल्चर दे, उनके घर में जाके उनको अपना उनका उनका कल्चर हटा के अपना कल्चर दे दिया। उनको अपना ड्रेस पहना दिया, सिखा रख दिया, तिलक लगा दिया, भगवान का भक्त बना दिया। और वो नाम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या आपका ये भक्ति जो मूवमेंट है ये हमें उस समय इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी। कुछ लोगों ने दिल्ली में प्रभुपाद से पूछा कि क्या पाकिस्तान आपका हरे कृष्ण महामंत्र से इंडिया जीत जाएगी, भारत जीत जाएगा? पाकिस्तान और भारत हिंदुस्तान में लड़ाई हो रही। तो प्रभुपाद ने बोला कि एक आप क्या ये पाकिस्तान पाकिस्तान लगा रखे हो? मैं देखो अकेले पूरी दुनिया में सबको हिंदू बना दिया हूँ। जैसे प्रभुपाद जस्ट मॉक कर रहे थे, ही वाज जस्ट इन लाइट मोड, मतलब ह्यूमरस टॉक। सो प्रभुपाद ने बोला देखो अकेले मैं पूरे विदेश में जाके सबको हिंदू बना दिया हूँ। आप लोग भी आइए हमारे साथ, संग हमारा हमारे हमको सपोर्ट करिए, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान बना दूंगा मैं। क्या आप एक पाकिस्तान के को लेकर इतना प्रॉब्लम में हो? पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान, मेरा साथ दो, पूरा पूरा दुनिया हम हिंदुस्तान बना देंगे। एक पाकिस्तान की क्या बात करते हो? सो दैट वाज द पावर ऑफ प्रभुपाद। सो दैट मींस दिस कैन बी डन ओनली बाय अ प्योर डिवोटी पर्सनल। जो परफेक्टली प्योर है वही कर सकता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं, अकेले जाते हैं, 3 लोग होकर आते हैं। कैसे 3 लोग? एक वाइफ भी आती है, एक बच्चा भी आ जाता है उनके साथ। तो गए तो थे अमेरिका में कल्चर देने, उनका कल्चर लेकर आ गए। बट प्रभुपाद उनको ट्रांसफॉर्म कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली। ये सबमिसिवली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी स्पिरिचुअल मास्टर सामने एरोगेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ही हम्बल और सबमिसिव मूड में हमें इंक्वायर करना है और सर्विस करना है। देखो कृष्णा बोल रहे हैं परिप्रश्नेन से परि, ये देखो पहली लाइन, तद विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मीन्स सरेंडर करो पहले सबमिसिवली, फिर परिप्रश्न करो। परिप्रश्न मीन्स इंक्वायर करो, हम्बली इंक्वायर करो, और फिर सेवा करो। सेवा करो तब क्या होगा? उपदेक्षंती, तब आपको ज्ञान का प्रकाश होगा। जो तत्वदर्शी हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने देखा है भगवान को, वो आपको भगवान के बारे में बताएंगे। जब ये 3 चीज करेंगे हम, क्या क्या? अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम। सर्विस बहुत जरूरी है। अगर सर्विस नहीं करेंगे ना तो हमें कभी कोई रियलाइजेशन नहीं होगा।
सो अब ट्रुथ हमने समझ लिया, तो ट्रुथ समझने के बाद क्या होगा? हम लोग इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे। हम लोग जो है ये समझेंगे कि हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के धाम चले जाएंगे और हम इटरनल शांति प्राप्त कर लेंगे। फिर भगवान बोल रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो स्पिरिचुअल मास्टर आपको देगा, ये नॉलेज बहुत ही पावरफुल है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कृष्णा? इवन इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. भले ही आप बहुत पापी हो, बहुत पाप किए हो, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करने के बाद जो स्पिरिचुअल मास्टर नॉलेज देते हैं, इतना पावरफुल है कि आपको मटीरियल ओशन ऑफ मिजरी से बाहर लेके चला जाए। दैट इज द पोटेंसी ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और फिर कृष्णा बोलते हैं, एज द ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड टू एशेस, ओ अर्जुना, सो डज द फायर ऑफ नॉलेज बर्न्स टू एशेस ऑल रिएक्शन टू मटेरियल एक्टिविटी। तो हमने जो भी पाप कर्म किए उससे सारे रिएक्शन जो हमारे लाइफ में आए वो सब बर्न हो जाएंगे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से, जो स्पिरिचुअल मास्टर हमें देता है, जो श्रीला प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नॉलेज लेने मात्र से केवल सारे सिंफुल रिएक्शन बर्न हो जाएंगे। यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं, सो व्हाट इज द बेस्ट एंड प्योरेस्ट इन दिस वर्ल्ड? दैट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये कृष्णा खुद बोल रहे हैं 4.38 में, बेस्ट एंड प्योरेस्ट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो गुरु से मिलता है हमें। So a faithful man who is absorbed in transcendental knowledge and who subdues his senses quickly attains the supreme spiritual peace. What is the ability to receive transcendental knowledge? अब ये क्वेश्चन आता है। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से तो हमें ये सब हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो गुरु से मिलता है, सारे सिंफुल रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बेस्ट और प्योरेस्ट है। सो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की एलिजिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज? सो प्रभुपाद बताते हैं, फेथ। तो फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर फेथ नहीं है तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो गुरु दे रहे हैं वो आपको कोई असर नहीं करेगा। सो वी शुड हैव स्ट्रांग फेथ और सेंसेस पे कंट्रोल होना। फेथ तो है, नॉलेज रिसीव कर लिए, लेकिन हम सेंसेस में हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमें हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। फिर उसके बाद ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है, कृष्णा बोल रहे हैं, बट इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर डू नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस, फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। सो यहाँ पर कृष्णा ने बोला फेथ होना जरूरी है, और फिर ये भी बोल रहे हैं अगर फेथ नहीं होगा तो क्या होगा? फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। अगर भगवान के इंस्ट्रक्शन पे डाउट कर रहे हैं, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर पे डाउट कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा ने बोला है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज किससे लेना है? बाय अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो मतलब जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो आपको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देगा, और अगर नॉलेज दे रहा है और आप डाउट कर रहे हैं तो क्या होगा? आप न तो इस जन्म में खुश रहेंगे ना तो नेक्स्ट में खुश रहेंगे। सो हु कैन नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस? जो इग्नोरेंट है, जो फेथलेस है, और हु कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड ऑल दिस डाउटिंग सोल। सो इसलिए क्या करना है? हमें स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना है फेथफुली, और ओनली दिस नॉलेज विल हेल्प वन बिकम प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो फेथ के साथ हमें स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना है, तभी हम नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। नॉलेज मिलेगा, गुरु जो नॉलेज दे रहा तभी हमारे ऊपर असर करेगा जब हमारे अंदर फेथ है। सो प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, वन हु फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ गीता एज इट इज इम्पार्टेड बाय द लॉर्ड, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डाउट्स बाय द ग्रेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो जो भगवान ने नॉलेज दिया है भगवद गीता में, उसको अगर हम लेते हैं, फॉलो करते हैं, सो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसलिए इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को क्या बोला गया है? स्वॉर्ड, तलवार बोला भगवान ने, ये तलवार है। और जब हम चैंटिंग करते हैं, सो चैंटिंग हरे कृष्ण, तो हम लोग सैक्रिफाइस के बारे में बीच में डिस्कशन आया था। सो व्हाट इज बेस्ट सैक्रिफाइस? चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। सो व्हेन वी डू चैंटिंग, माइंड कंट्रोल होगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, और हम प्योर होंगे, तो हमारे अंदर फेथ डेवलप होगा। सो अभी हमारे अंदर फेथ नहीं है। जब हम चैंटिंग हियरिंग करेंगे, अच्छे से सुन सुन के नाम जप करेंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर
फेथ डेवलप होगा और सिंफुल रिएक्शन बर्न हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So that is how fourth chapter is now end over here. तो यहाँ पर चौथे अध्याय का समापन होता है। So now we'll end the class. Let us have the quiz of today's class. मैं quiz link share कर रहा हूँ chat box में, आप लोग इस quiz को attend करना। And now tomorrow we'll start fifth chapter. So now I'm going to end the class. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।